is business and legal environment, and the last topic from the unit 2, that is the business ethics. What is the meaning of business ethics? जब भी हम ethical business की बात करते हैं, that means some moral, some principles, some laws are associated with the business. मतलब business के व्यवसाय के कुछ अपने क्या होते हैं, ethics होते हैं, जिनके साथ business को क्या किया जाता है, रन किया जाता है. All the managers, all the businessmen are reliable on the business ethics, and it is the responsibilities of the business that always they have to fulfill the ethical of the ethics of the business के जितने भी ethics होते हैं उनको fulfill करना, उनको complete करना किसकी responsibility होती है? बिजनेसमैन की responsibility होती है, मैनेजर्स की responsibility हम कह सकते हैं. तो जब भी बिजनेस एथिक्स को बोला जाता है, दैट मीन्स कि whenever you are establishing, whenever you are starting any business, that means automatically some ethics are associated with your business. आपके बिजनेस के साथ कुछ एथिक्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, कुछ मोरल्स होते हैं, कुछ नैतिकताएं होती हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जो ऑटोमेटिक आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं. एंड टाइम टू टाइम यू हैव टू फुलफिल ऑल द ethics of your business. Here now we will discuss, it was the simple meaning of business ethics, and now we will discuss about the types of business ethics. business ethics के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के business ethics होते हैं, we will discuss now. The first type of business ethics, that the personal responsibility. personal responsibility क्या होती है कि whenever you are doing any business, अगर आप कोई भी business कर रहे हैं, that means you are having lots of responsibility. आपके ऊपर क्या होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं. ये responsibility किसके रिगार्ड्स होती है? It is regarding to your employees, your market, your customer, your supplier, each and every person who is directly or indirectly associated with your business. जो कि आपके बिजनेस के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोग जुड़े होते हैं, उनके लिए आपकी क्या होती हैं, कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. That means if you are producing some products, if you are providing some services, that means it's your responsibility that you make sure that your customer is satisfied with your products or services or not. You are giving the qualitative product to your customer. You are giving the reliable services to your customer. Then only customer will come to you next time. Otherwise, they will deny to you and your products and your services also. So here we talking about the business ethics, and the first type of business ethics said that the personal responsibility. हर बंदे की अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, that time to time they have to fulfill it with the context of the business ethics. Second type said the corporate responsibility. Now the corporate responsibility, that means the persons who are joining with you, those who are giving working to you, those who are producing product for you, for your organization. That means sometime it may be the BODs, the MDs, managers, your colleagues, your subordinates, those people who are corporatively associated with your organization or to you, you are having some responsibility for fulfilling with the ethicals, ethics. जो आपको ethics के साथ कुछ moral, कुछ principles के साथ आपको क्या करनी होती है, fulfill करनी होती है. ये second type होता है business ethics का, that is the corporate responsibility. Next is the loyalty. What is the meaning of loyalty? If you are a customer, if you are a businessman, if you are a manager, आप कोई भी person हो, you always be a loyal person. आपको क्या होना चाहिए, loyal person होना चाहिए. अब ये जो loyalty होती है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के साथ ना होते हुए, you have to be you should be loyal with your products, with your service as well as the human beings. human being के साथ तो हम loyal होना जानते हैं, but प्रोडक्ट और सर्विसेज के सेंस में लॉयल्टी कैसे होगी कि यू हैव टू बी फिक्स्ड अ स्टैंडर्ड ऑफ योर प्रोडक्ट. यू ऑलवेज प्रोवाइडेड द क्वालिटेटिव प्रोडक्ट टू योर कस्टमर एज अ रीजनेबल प्राइस. आपको लॉयल होना पड़ेगा. ये आपका बिजनेस एथिक्स का थर्ड टाइप होता है कि अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसका जो मोटिव है वो अर्निंग मनी है या दूसरों को जॉब प्रोवाइड करना है. ऐसे बहुत सारे टर्म्स एसोसिएट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं आपके बिजनेस के साथ, जो आपको फुलफिल पूरी करनी ही होती है. तो द थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस एथिक्स
अबाउट लॉयल्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं रिस्पेक्ट। every employee of your business, every customer of your product want respect always। हर कोई पर्सन जो कि आपके बिजनेस के साथ जुड़ा है, ऑल्दो ही इज कंज्यूमर, ऑल्दो ही इज सप्लायर, कोई भी हो सकता है वो व्यक्ति, जो भी बिजनेस के साथ एसोसिएट होता है आपके या आपके सर्विसेज को जो पर्सन कंज्यूम करता है, दे जनरली वांट ओनली रिस्पेक्ट। वो क्या चाहते हैं? रिस्पेक्ट। यू हैव टू बी ट्रीट गुड टू योर एम्प्लॉयज, टू योर कस्टमर एज वेल एज योर कंज्यूमर्स। आपको सभी के साथ रिस्पेक्टफुली ही क्या आना चाहिए? पेश आना चाहिए, उन्हें ट्रीट करना चाहिए। इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ बिजनेस इथिक्स। रिस्पेक्ट भी बिजनेस इथिक्स का अपना एक टाइप होता है, क्योंकि सपोज कोई कस्टमर आपकी शॉप को विजिट करता है, आप बड़े पोलाइट वे में, बड़े पोलाइटली आप उसके साथ डील करते हैं, यू आर गिविंग रिस्पेक्ट टू देम। नेक्स्ट टाइम आइएगा, जो भी शॉप्स पे हम जाते हैं, हम विजिट करते हैं, अगर हमको अंदर से फील होता है कि दिस पर्सन इज गुड, वो जो शॉपकीपर था वो अच्छा था, नेक्स्ट टाइम श्योरली यू विल विजिट टू शॉप। आप उसके शॉप को क्या करेंगे? विजिट करेंगे, और दूसरे लोगों को भी आप क्या करेंगे? बताएंगे उनके बारे में। तो ऐसे ही होता है बिजनेस के सेंस में। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, यू ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। देन द ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता। कैसे ट्रस्टवर्दीनेस? तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं ट्रस्ट की कि भाई प्रोडक्ट कैसे बनाए हमें नहीं पता है, ओनली वी आर कंज्यूमर और कस्टमर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम ट्रस्ट किस पे करते हैं? जिसकी शॉप से हम उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चरर है, हमने उनको कभी नहीं देखा होता, बट वी आर हैविंग द ट्रस्ट ऑन देम। क्यों? क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट हम पहले भी पास्ट में कंज्यूम कर चुके हैं और उससे हमको अच्छी सर्विसेज मिली है, सेटिस्फैक्ट्री गुड्स था वो, दैट मीन्स कि दे आर ऑलवेज मेंटेनिंग देयर ट्रस्ट। जैसे होता है ना कि कई बार कोई शॉप होती है जिसको हम अगर हमको जब भी, जैसे अगर हम बात कर लें गोल्ड की, अगर हमें गोल्ड परचेज करना होता है तो हर बार एक शॉप होती है जो कि फिक्स होती है, हम उसी को विजिट करते हैं या वहीं से हम प्रोडक्ट खरीदते हैं। क्यों? बिकॉज दे ऑलवेज मेंटेनिंग ट्रस्ट। वो कभी भी अपने कस्टमर के साथ क्या नहीं करते, या हमें ऐसा लगता है कि भाई हम इस शॉप से अगर ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं तो हमारे साथ कभी भी कोई चीटिंग नहीं होगी, हमें गलत गोल्ड नहीं दिया जाएगा, या रेट हमसे ज़्यादा कम नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रस्ट क्रिएट होता है। अब यही मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर के सेल्स में भी होता है कि दे ऑलवेज हैव टू मेंटेन द ट्रस्ट विद देयर कस्टमर्स, विद देयर कंज्यूमर्स। और भी जितने भी लोग आपके बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं, कोई ना कोई सप्लायर भी होगा जो रॉ मटेरियल देता होगा, आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, फिर अलग अलग ऐसे जो लोग जो आपके बिजनेस के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। यू ऑलवेज मेंटेन द ट्रस्टवर्दीनेस विद दोज पीपल बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ योर बिजनेस। कहीं ना कहीं यही वो लोग हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस चल रहा है। तो इट इज द अनदर टाइप ऑफ बिजनेस इथिक्स। नेक्स्ट इज द फेयरनेस। जो भी आप काम करें, जो भी, इफ यू आर प्रोवाइडिंग गुड्स, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, सो ऑलवेज इट शुड बी फेयर। वो क्या होना चाहिए? लीगल, फेयर होना चाहिए, सही होना चाहिए। इट इज द अनदर टाइप ऑफ बिजनेस इथिक्स। नेक्स्ट द कम्युनिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने पब्लिक की बात कर ली, हमने कस्टमर्स की बात कर ली, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी, मीन्स द पीपल, मीन्स द सोसाइटी विच इज रिलायबल ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो कि आपके बिजनेस के गुड्स सर्विसेज के ऊपर क्या होती है? रिलायबल होती है। दे आर हैविंग ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज वेल एज साइमल्टेनियसली यू आर हैविंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ भी बिजनेसमैन की, मैन्युफैक्चरर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जुड़ी होती है, जो कि कल वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में, जब हमने एयर वाटर लैंड पॉल्यूशन को पढ़ा था। तो उसी तरीके से अब एनवायरमेंट की टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है? यही कि भाई हमारी कंपनी से जो स्मोक है या जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी गार्बेज है, तो हमको उसके लिए एक स्थान सुनिश्चित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कहीं भी हमने कचरा डाल दिया, पानी हमने जो वेस्ट वाटर है या जो पॉल्यूट वाटर है वो हमने नदियों के साथ जोड़ दिया, जिससे क्या हो कि हमारे इन्वायरमेंट को जिससे क्या हो? नुकसान हो रहा हो। इन्वायरमेंटल का हिस्सा जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारी कंपनी के आसपास के रहवासी लोग हैं, कहीं उनकी हेल्थ के ऊपर तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या इन्वायरमेंट जिसका हम एक हिस्सा है, जो हमें प्रोटेक्ट किए हुए हैं, कहीं हम उसी को तो हार्म नहीं पहुंचा रहे। तो दैट मीन्स
community as well as the environmental responsibility. It is another type of business ethics. ये भी business ethics के अंतर्गत ही आता है कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपने ट्रस्ट क्रिएट किया हो और आप environment के साथ कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. You are having as a businessman some responsibility towards your environment. So always you have to take care about the environment, जिससे आपके environment को आपके business, आपकी services की वजह से आपके environment के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े, इसका भी एज अ बिजनेसमैन आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है कम्युनिटी के साथ साथ. तो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बिजनेस ethics. It was the last topic of our unit second. From the next video we will discuss about the new topics of the unit 3.